basically. Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. And in today's class we are going to talk about the meaning of globalization, advantages of globalization and disadvantages of globalization. तो कोशिश करूंगा कि मैं तीनों के तीनों टॉपिक आज की क्लास में टच करूं, ये सारी चीजें आपको समझाऊं. नहीं हो पाती है तो किसी जो भी टॉपिक छूट जाएगा उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे. So if I talk about first of all globalization like global economy बना देना, that's what we call globalization. So ग्लोबलाइजेशन में दो तीन चीजें आती हैं. अगर आपने 10th क्लास में अपना ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा, आई हैव आल्सो टेकन द डेफिनेशन फ्रॉम दैट बुक ओनली, फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लास 10th. First of all, what is the basic definition of globalization? Globalization refers to the integration of our economy with the world economy. Integrate हो जाती है जब हर एक इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ. That's what we call globalization. This is the second definition which I have taken from NCERT, basically class 10th economics globalization chapter. It is a system in which goods and services, goods ये important है, goods move कर सकते हैं, services move कर सकती हैं, investment move कर सकती है, and people can move freely across the political boundaries, and that's what we call globalization. So it is a system in which goods, services, investment and people move freely across the political boundaries, कि ये सारी चीजें freely एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर पाए. जैसे कि इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया, क्योंकि कुछ हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं. इंडिया से यूएस, यूएस से इंडिया, इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री, यूएई वगैरह के साथ जो भी हम ट्रेड करते हैं. So it basically means globalization is a system in which goods, services, investments and people move freely across the political boundaries. कोई foundation ना हो. That's what we call integration of the world economy with our own economy. So some people say that it is a very complex phenomenon. ये बहुत complex phenomenon होता है. तो इसको समझ लेते हैं एक एक करके. कहते हैं globalization means integration of the economy of the country with the rest of the world. Integrate हो जाती हैं जब. It is an outcome of the set of various policies that are aimed at transforming the world toward greater independence and integration. So because of globalization, what happens that we rely on some specific goods for some specific countries. हम स्पेसिफिक चीजों के लिए दूसरी कंट्रीज पर रिलाई करते हैं इस तरीके की सिचुएशन में. फॉर एग्जांपल लाइक in India, whatever mobiles we are producing or electronic gadgets we are producing, then the components are basically coming from China only. So we are completely dependent on China for the supply of kind of goods. If I talk about the petroleum products, then basically for petroleum products we are dependent on Gulf countries. So basically when we talk about globalization, we are talking about the greater independence and integration of, and we are forming the various policies so that we can transform the world towards the greater interdependence and integration. एक दूसरे पर ज़्यादा से ज़्यादा dependence होना, I personally don't think so that it is a very good thing. But yes, आज ऐसे ऐसी चीजें हो गई हैं कि हम एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा dependent हैं. It involves creation of networks. ये कंट्री है ए, ये कंट्री है बी, ये कंट्री है सी, ये कंट्री है डी, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं. यू कैन सी ए सी के साथ, ए बी के साथ. ए और बी तो ऑलरेडी ट्रेड में हैं. तो ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो ट्रेड कर रही हैं उसकी बात है यहाँ पर. और दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिएटिंग द नेटवर्क एंड एक्टिविटीज transcending economies, social and geographical boundaries. Globalization attempts to establish links in such a way that happening in India can be influenced by events happening miles away. एक कंट्री में कोई छोटी सी बात होती है तो वो आपके यहाँ पर भी इम्पैक्ट करते हैं. ग्लोबलाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स है. It is turning the world into one whole or creating a borderless world. आप कोशिश करते हैं इसकी हेल्प से एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड तैयार करने की, कि हर एक कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करे,
high degree of interdependence would be prevailed there. This is what we call globalization. तो ये कुछ key pointers हैं globalization के on which you can pay attention. If you talk about the positive effects of globalization, then you people can see that particular thing. The positive effects, you can call them advantages as well. कि globalization के क्या advantages होते हैं, नहीं होते हैं. So first of all, increase in employment, increase in compensation, high standard of living. Why do we say that particular thing? ये तीन चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. Positive इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब आप कोई वर्ड इकोनॉमी आती है, क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है, नहीं होता, लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहली चीज कहते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिनाई दैट पर्टिकुलर थिंग दैट बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ बिग एमएनसीज इन इंडिया द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड बहुत ज्यादा. बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गवर्नमेंट इज नॉट इन अ सिचुएशन टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द पीपल in the economy. So somewhere by giving chance to establish the units of MNCs in India, government is trying to improve the employment opportunities with the help of MNCs, and this is only possible under globalization only. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, लेट्स हैव अ लुक. आज के टाइम में तो बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं. आपने देखा होगा एप्पल भी आजकल इंडिया में एस्टैब्लिश कर चुका है असेंबलिंग के लिए अपने यूनिट्स. वन प्लस, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला, लेनोवो तो एक ही चीज है. तो ये सारी कंपनीज इंडिया में आ चुकी हैं. आज के टाइम में असेंबल होते हैं फोन, इनके मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर. these are all of special economic zones, number of new jobs availability. अब जैसे अगर आप इंडिया में बात करें तो गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर जैसे एरिया जो है इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से जॉब अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई है. पहले गुड़गांव वगैरह को कोई नहीं पूछता था, बट गुड़गांव की जो प्रोग्रेस है वो दिल्ली से भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है. इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स. कुछ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स भी हैं. सेंटर इन इंडिया इज वेरी यूजफुल इन एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. अनदर एडिशनल फैक्टर इन इंडिया इज चीप लेबर. इंडिया में जो लेबर है वो चीप है. आजकल आप देखेंगे चाइना में भी जो लेबर है वो इंक्रीज हो चुकी है, प्राइस उनका इंक्रीज हो चुका है. दे ऑल्सो वॉन्ट हाइक इन लेबर प्राइसेस, लेबर चार्जेस, बट इंडिया में आजकल चीप लेबर मिलने लग गई है. दिस फीचर मोटिवेट्स बिग कंपनीज इन द वेस्ट टू आउटसोर्स एम्प्लॉयज फ्रॉम अदर रीजन एंड कॉज मोर एम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ चीप लेबर द बिग कंपनीज, बिकॉज दे ऑलवेज सीक प्रॉफिट्स. प्रॉफिट कहां से मिलेगा, अगर आप लेबर, रॉ मटेरियल, इनकी कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी. तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ऑफ द चीपर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल, these big companies are moving to India and they're outsourcing the employees from India. इंडिया के एम्प्लॉयज को काम दे रहे हैं. अगर आप कोई काम करवाते हैं यूएस में आपने टेलीकॉलिंग के लिए एक पर्सन को हायर किया, आप उसको एटलीस्ट $1,000, $1,500 देना ही पड़ेगा. $1,000 का मतलब होता है 75,000 रुपीज इंडिया में. अब वही काम आप इंडिया में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करके 30,000 से 50,000 में बड़े आराम से करवा रहे हैं. तो बेसिकली आपको सीधा सीधा 25,000 का प्रॉफिट तो यहां पर हो गया. तो बेसिकली दे आर ऑल्सो गेटिंग प्रॉफिट एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है. इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन, दैट इज अनदर पॉइंट. So after globalization, the level of compensation has increased as compared to the domestic companies due to the skill and knowledge a foreign company offers. तो ये तो सच्चाई है. I have also observed such kind of examples. might be आपने भी observe किए होंगे. I would like to give you a recent example. एक लेडी थी जिसने आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ बग निकाला था एंड गूगल या में कुछ बग निकाला था एंड दैट लेडी वाज पेड 20 लाख रुपीस और 40 लाख रुपीस या पता नहीं 2 करोड़ रुपए मिले थे शायद उसको उस कंपनी की तरफ से, और फ्री ऑफ उसमें उसको फ्री में जॉब मिली थी कि आप आओ हमारी कंट्री में, हमारी कंपनी में काम करो, आपके जैसे पर्सन हमें और रिक्वायर्ड है. एंड उसको बिना किसी डिग्री वगैरह की जॉब पे रख लिया गया. मैं आपको बता देना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको टैलेंट के बेसिस पे जॉब मिलती है रादर देन
डिग्रीज के बेस। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब एमएनसी जब आते हैं यहाँ होता है तो डोमेस्टिक कंट्री से अच्छा रेवेन्यू, अच्छी इनकम, अच्छी सैलरी उनको मिलती है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड वन ऑफ द पॉइंट कॉल्ड इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन इंक्रीज हो जाता है इनका। The opportunity also emerged as an alteration of the management structure. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है इन्हीं सारी चीजों की वजह से। High standard of living. Now, if people will be able to get employment, they will be paid good salary, then definitely high standard of living will be ultimate consequence. अपने आप सैलरी जब इंक्रीज होगी तो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। सो विद द आउटब्रेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द Indian economy and the standard of living of an individual has increased. This change is notified with the purchasing behavior of a person. पहले कम परचेज करते थे, आजकल परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है, स्पेशली विद दोज हु आर एसोसिएटेड विद फॉरेन कंपनीज। जो फॉरेन कंपनीज के साथ लगे हुए हैं, दे आर अर्निंग गुड सैलरीज। Hence, many cities are undergoing a better standard of living along with business development. You can take the example of Gurgaon. You can take the example of NCR area. इतना डेवलप हो गया है जितने आसपास के सिटीज इतना जल्दी डेवलप नहीं हुए हैं। गुड़गांव तो आपका, क्योंकि हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो गुड़गांव इसका जीता जागता एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से ये डेवलप हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तीन यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के। बाकी अगर मैं बात करूं तो इन सारी चीजों की बात हम अगली क्लास में भी करेंगे, लाइक नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे ओवरऑल एलपीजी पॉलिसीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो वी विल डिस्कस ऑल सच थिंग्स देयर एज वेल। नाउ हर चीज को इम्प्लाई करने के लिए आपको उसको चैनल प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो मेड अ चैनल, it made some changes basically, it took some measures for the globalization of Indian economy. वो measures क्या क्या थे कि कोई बाहर की कंपनी से आराम से आए, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी हमारी वो हमने रिमूव कर दी, और आज के टाइम में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% अलाउड कर चुके हैं। इट मींस यू कम हियर, you establish your enterprise, you control that enterprise, so that's a very good thing, even though they are using our resources but ये mutual profit है। import and export quotas have been removed. जो पहले कोटा हुआ करता था उसको रिमूव कर दिया गया। you can easily import the capital goods like machinery, tools, such kind of things, and raw material भी आप import कर सकते हैं। आजकल raw material भी बाहर से import होता है। कस्टम ड्यूटीज भी आपने रिड्यूस कर दी है, जो कस्टम पे सामान आता था वो भी आपने रिड्यूस कर दिया है, तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी परमिटेड, द रुपी हैज बीन डीवैल्यूड, रुपी को आपने डीवैल्यू कर दिया है, और इसकी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी भी आपने अप्लाई कर दी है, परमिट कर दी है कि आप इसको पार्शियली कन्वर्ट कर सकते हैं। और डीवैल्यू करने का मतलब ये होता है कि आपने फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, जब भी आप डीवैल्यू करते हैं अपनी करेंसी को, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं बच्चे, इसको समझ लीजिए, आपका फॉरेन एक्सचेंज में भी आएगा ये टॉपिक। बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। वाई? बिकॉज जो गुड्स होते हैं, इंडियन गुड्स होते हैं, वो चीपर हो जाते हैं फॉरेनर्स के लिए, और इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं डोमेस्टिक रेजिडेंट्स के लिए। द कंट्री अडॉप्टेड अ लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी हमने फॉलो करना शुरू किया, दैट इफ यू आर डूइंग ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉलो करें जिसमें सारी चीजें, सारी जो भी चीजें होनी चाहिए वो इंक्लूडेड हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉकिंग अबाउट आउटसोर्सिंग, हाउ इट इज गुड, हाउ इट इज बैड, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ये छोटे छोटे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, ऑल ऑफ यू ध्यान देंगे, समझ में आएंगे। बाकी इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आपको रिक्वायर्ड है, कोई वीडियो मिस कर दिया है आपने, तो यहाँ आप कार्ड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईईडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और भी रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर से वीडियोस, आईईडी की वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें। नहीं आया समझ में, नो नीड टू hit the like button or doing anything else. आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, take care and goodbye and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you so much all of you.